Ram Ram, Namaste, Namaskaram, Walaikum Salam, Bula to all the Fiji Indians living in Fiji and all the Fiji Indians living abroad as far as Alaska, Norway, Sweden, Lao People Republic, and the Middle East. So tomorrow is the 14th of May. And I decided that I will do a special edition in English and Hindi of the first Kirmitias who arrived on Leonidas on 14th May 1879. And then towards the end of August, the first batch of Kirmitias who were taken to Rambi Island from Yenuda Lailai. Rambi Island that time was owned by Captain John Hill, who used to live in Sydney, near Parramatta or Strathfield, and bought the island for £10,000 from King George I. So the first batch of 106 Kirmitias were taken to Rambi Island, and then from 1879 onwards, there were more Girmitias taken to Rambi Island. There was one occasion when he had surplus of Girmitia laborers. He then sent about 50 Girmitias to the island of Tavuni, where they worked on 2 copra plantations. So, as I said earlier, I know that there is a delegation from India, actually a state external affairs minister, who has gone for the Remembrance Day events, and I believe he was in Lambasa a couple of days ago. In my prior presentation, I had mentioned that he should visit Rambi Island, he should visit Mango Island, he should visit Tavuni and go to Gila Tavuni. He should also go to Dosamu in Talebu. He should also visit the interior of Naitasiri where Wainimala and Wainimbuka River meet, and also Bila Levu in Singatoka, and probably take a helicopter trip to Mango Island, which is owned by Mel Gibson, where many Girmitias worked also in establishing a sugarcane farm and a sugar mill. So, this is the map of Rambi Island, and you can see the 3 main villages or centers that were established under Captain John Hill. So the names I'll read is Nuku, whereas I think it is now called by the Rambi Islanders Tabewa. The second one in the middle is called Uma, which is Winuku, and the one at the bottom is Tabiak or Tabiang, which is called Siosio. So this is where the first batch of Girmitias who came on Leonidas were taken to Rambi Island to work on Captain John Hill's copra plantation. And then the island was sold off to Lever Brothers Southwest Pacific Plantations Limited. And then Lever Brothers became Unilever after many years. And then the island was sold to the British government to settle the Banabans from Ocean Island. So that is the history. So when the island was sold in 1940, from 1940 to 1945, the Girmitias who were living on Rambi Island
and I will show you. So this is Natewa Bay. So the village there is called Koro Tasere and Vanuavau and Malake. So there were two very large copra plantations. One was called Waimotu and the other one Nadolase. So they were side by side. And from 1940 till I think for very many years, you could not drive from Savu Savu to Waimotu or Nadolase or Sangani and all the way to Undu Point. So in those years, they used to take a boat or schooner from Savu Savu and then go past Navutu Jetty and then make your way past Kiwa Island to the northern tip and then make your voyage, say, getting into the opposite direction to Waimotu and Nadolase and Koro Tasere. So if you were here, suppose Savu Savu is here, then the boat used to come all along this way, past Kiwa Island, between Rambi Island and the tip of this bay, and then make its way back here. So at times, the groceries would not be delivered for a month or 2 months or 3 months, depending on whether the plantations had enough copra to take back to Savu Savu, and then it would make its way back to Walu Bay in Suva. So, the other place, when they were kicked out of Rambi Island, few of the Girmitias were settled in a village here beside Navutu Jetty, a village called Loa. So if you drive from Savu Savu along the highway, it will take you about 2 hours roughly. So about 40 minutes on Tahsil Road and another hour and a bit on Ansil Road, and you will reach Natuvu Jetty, and then the Loa village. I think the Loa village is located about 3 or 4 kilometers from Natuvu Jetty. I have been only to Natuvu Jetty, and I did travel about 4 kilometers up the road because I missed the turn-off to Natuvu Jetty in 2023. So there was a settlement of those Indian families who were kicked out of Rambi Island and were involved in rice farming. And apparently, I have been told that the soil around Loa village is very rich because there's also a river that flows very close to the village. And the Indians used to harvest more than 1,000 tons of paddy. And then they had to leave their land after 1960. So what else happened? So this is the northern tip of Taveuni. This is the northern tip of Taveuni. So there were also some Girmitia families who were kicked out of Rambi Island. They were taken and resettled in Taveuni. So that is a bit of history. And the reason why I'm doing this special edition is because I've noticed and read that since Saturday or Friday, not anywhere in Fiji
has this been covered, that where the first batch of Girmitias were taken to. Now let's discuss some issues of what happened to these Girmitias when they were kicked out of Rambi Island from 1940 to 1945. So there is no record as to whether Liva brothers paid their actual due wages when they left the island. The Girmitias who were evicted or kicked out left only with their clothes on and probably a couple of pots and pans and plates. Nothing else. So the three places they were taken to in large numbers was Waimotu Plantation, Nadolase Plantation, Teviuni, and some surrounding plantations around Sausa. And there were a couple of families who were taken to Dreketi on a white peasant called Simpson's Farm Estate. So, what happened when Liva Brothers was running the plantation and owned Rambi Island? There are stories that people have related to me, but want to remain confidential. That, as I mentioned earlier, the three locations, Nuku, Uma, and Tabian, and Buakonikai, which is located here. That Pesi Lyons, who was the general manager for Liva Brothers, was a very violent person. And according to what people have told me, that somewhere between 18 to about 40 to 50 Girmitias were shot dead because he did not want to make any payment or pay them any wages. There are also stories which have been relayed to me from 4 or 5 people that Pesi Lyons' daughter, who actually lived on the island, could not digest the hunger of the Girmitias, and on one occasion was handing out groceries to 3-4 Girmitia men without the knowledge of her father. She was, however, caught. After a couple of days, Mr. Pesi Lyons came to know that the daughter had actually given some of the groceries to some of the Girmitia men. And he shot his daughter to death. And apparently the 3-4 Girmitia men who received the groceries were also shot dead. There are stories that when his raging violence was upon him, he used to shoot randomly on Rambi Island. There are stories that he raped Girmitia women, and unfortunately Girmitia women gave birth to children.
So those are some of the sad stories of Rambi Island. And with modern technology these days, some of those generation of Girmitias, if they do a DNA test, it will probably be revealed that they have Anglo-Saxon genes of blood in them. So no one knows, even under Captain John Hill and Lever brothers, what sort of payment was made, because there was a deduction of their groceries, their accommodation, etc. So while all this has been happening, it is important that we trace the generation of those first batch of Girmitias who were taken to Rambi Island and put a case forward to Unilever to compensate those families. Unilever is a very large multinational. They make profits in between 8 to 9 billion euros per year. And it is also said that till today we do not have a monument built on Rambi Island to remember the first Girmitias who came on Leonidas and were settled on Rambi Island to work for Captain John Hill on his copra plantation. The Girmitias over time planted, according to the actual records, which cannot be accurate, but it stated that the Girmitias planted 190,000 coconut palms. It could have been more, probably 200 to 250,000 coconut palms. Besides that, they also grew rice, and they also grew sugarcane on about 25 acres of land. They also had their own poultry. They also kept cows for milk. And they grew many mango trees, breadfruit trees, and jackfruit trees, and other different types of fruits on the island. There was also a very new or modern jetty or wharf to transport the copra once it was ready for export. So I hope that someone does a presentation of the first batch of Girmitias who arrived on Leonidas, stayed in quarantine on Yenuda Lailai, and from the end of August till about end of October or November, they were transported to Rambi Island. So that is the actual history of the first batch of Girmitias who were taken to Rambi Island. So I will now speak in Hindi for my Hindi listeners. तो आज मैं ये बतलाऊंगा कि जो गिरमिटिया लोग पहले आए थे, वो पहले बार फिजी आए थे लेनिदास में 14 मई 1879 को. उनको यनुदा लाइलाई आइलैंड, जो मोटोरिकी आइलैंड और साउथ ऑफ ओवरलाओ, दक्षिण ओवरलाओ से, वहाँ पर उनको क्वारंटीन में रखा गया. और फिर
अगस्त के समाप्त से लगभग नवंबर तक उनको राम्बी आइलैंड ले गया गया। उस समय वो आइलैंड का आउना था कैप्टन जॉन हिल। वहां पर गिरमिटिया लोग लगभग 200,000 से लगभग 250,000 नारियल पेड़ बोए। नारियल के खेती के अलावा वो वहां पर गन्ना भी बोए, लगभग 30 बीघा जमीन में। बहुत से सारे बेल फ्रूट यानी कि ब्रेड फ्रूट और कटहर के पेड़ वो लगाए। बहुत से सारे आम पेड़ बोए और बहुत से और वो फ्रूट ट्रीज वहां पर यानी कि फ्रूट के पेड़ वो बोए। और फिर जब 1940 में लीवा ब्रदर्स वो आइलैंड को बेचे ब्रिटिश सरकार को, तो वहां से गिरमिटिया लोग और उनके परिवार को वहां से निकाला गया। तो मैं फिर से जल्द से दिखा दूं कि जो नत्तेवा बे है, यहाँ पर 2 कोपरा एस्टेट्स था, वाइमोटू और नादोलासे, और वहां पर बगल में काइबीती विलेज है, कोरोतासेरे और वी नांदी और वनवावाऊ और मलाके। तो उनको यहाँ पर बसाया गया। तो उस समय साबू साबू से यहाँ पर रास्ता नहीं था, तो साबू साबू से बोट या स्कूना जाता था। आप फिर देख सकते हैं यहाँ पर नतुवु जेटी और लोवा, लेकिन वो यहाँ से जाकर कीवा आइलैंड और राम्बी आइलैंड के बीच में से फिर ऐसे बे में आकर तब यहाँ पर जाते थे सौदा लेकर। फिर यहाँ से कोपरा लाद के वो साबू साबू जाते थे। कुछ गिरमिटिया लोग को अगर जो आप साबू साबू से चलेंगे ये हाइबिस्किस हाईवे, तब आप पहुंचेंगे नतुवु जेटी। नतुवु जेटी के लगभग 3-4 किलोमीटर दूर पर एक काइबीती इलाका है, उसका नाम है लोआ। वहां पर जब हिंदुस्तानी लोग को राम्बी आइलैंड से निकाला गया तो उनको लोआ विलेज या लोआ एरिया में उनको बसाया गया। और वहां पर लगभग 1,000 से ज़्यादा गिरमिटिया परिवार हिंदुस्तानी लोग यहाँ पर रहते थे। और यहाँ पर बहुत तगड़ा ज़मीन है, वहाँ पर एक नदी भी है और उसके पास इतनी तगड़ा ज़मीन था कि यहाँ पर उस समय हिंदुस्तानी गिरमिटिया लोग और उनके परिवार 1,000 टन से ज़्यादा धान निकालते थे, पेडी। और फिर कुछ गिरमिटिया परिवार को जब निकाला गया तो उनको वहां से तव्यूनी में बसा गया। और जब कैप्टन जॉन हिल इस आइलैंड को बेचा लीवा ब्रदर्स को, तो वो जाकर तव्यूनी में रिटायर हुआ। तो ये है इतिहास। और ये है राम्बी आइलैंड का मैप। वहां 3 इलाका या 4 इलाका था, नूकू, उमा, तबियांग और बुआ कोनिखाई। तो जब कैप्टन जॉन हिल और भी गिरमिटिया लोग को लिए प्लांटेशन में काम करने के लिए, और एक समय था जब उसके पास थोड़ा ज़्यादा गिरमिटिया लोग हो गए, यानी कि सेप्लस लेबा हो गया, तो कुछ लगभग 50 गिरमिटिया लोग को वो तव्यूनी भेज दिए और वहां पर वो जाकर कुछ प्लांटेशन में काम किए। तो कैप्टन जॉन हिल
के पास केवल 2 बेटे थे। वो सिडनी में, जहाँ पर पैरामेटा है या स्ट्रेथफील्ड है, वहाँ पर वो रहता था। वो आइलैंड के किंग जोस तप्पो 1 से वो खरीदा था। तो राम्बी आइलैंड पे जब उसका जो छोटा बेटा था, जब वो एक दिन सुअर मारने गया बंदूक से, तो वो अपने पैर में बंदूक दाग लिया और वो 2 दिन बाद वो गुजर गया। उसका जो बड़ा बेटा था वो पहला सुपरिटेंडेंट था CSR के नसूरी शुगर मिल में। तो जो कैप्टन जॉन हिल जो रिटायर हुआ तब्यूनी में, उसके पास बहुत से ज्यादा फ्री होल्ड जमीन था तब्यूनी में। मुझे अब बतलाया गया है कि वो जमीन कुछ सब डिवाइड हो गया, कुछ हिंदुस्तानी लोग ले लिए, लेकिन जो उसका पीढ़ी का 1-2 परिवार कैप्टन जॉन हिल के, वो अभी भी तब्यूनी में रहते हैं। तो अब हम चले लीवा ब्रदर्स के बारे में कुछ बातचीत करें। तो लीवा ब्रदर्स का जनरल मैनेजर था एक बहुत बुरा आदमी, जनरल मैनेजर पेसी लायंस। उसके बारे में बहुत कम लिखा गया है क्योंकि वो इतना बुरा आदमी था। तो मुझे 5 लोग फिजी से बतलाए हैं कि वो हिंदुस्तानी लोगों को या गिरमिटिया लोग को इतने खराब से वो पेश करते थे, भूख से वो तड़पते थे। तो उसका एक बेटी था, तो वो बेटी या वो लड़की एक दिन चुप्पे से, उसका पिता का वो जो कैप्टन पेसी लायंस को नहीं पता था, वो चुप्पे से चोरी से कुछ सौदा पानी 3-4 गिरमिटिया आदमी को दे दिए। लेकिन वो बेटी या लड़की पकड़ा गई और जो पेसी लायंस उसका पिताजी था, वो बंदूक से उसको दाग दिया। और जो 3-4 गिरमिटिया आदमी थे वो तो पकड़ा गए, उनको भी वो दाग दिए। उनका मौत हो गया बंदूक से दागने के बाद। और फिर ऐसे भी बतलाया जाता है कि पेसी लायंस इतना बुरा आदमी था कि कुछ कुछ गिरमिटिया स्त्री और लड़की को बलात्कार करते थे। और ये बहुत सोच के बात है कि कुछ गिरमिटिया स्त्री लोग बच्चे को पैदा किए जो पेसी लायंस उनका बाप थे। तो ये हरकत हुआ राम्बी आइलैंड में। ऐसा भी बतलाया जाता है कि जब समय समय पर उसको गिरमिटिया आदमी को पैसा देना था, उनका तनख्वाह देने के समय आ जाता था, वो तनख्वाह नहीं देते थे। तो वो बतलाते थे कि अब हम चले कहीं पर गड्ढा खोदे और वहां पर हम नारियल के खुज्जी को सड़ाकर खाद बनाएंगे। तो ये 3 जगह है राम्बी आइलैंड पे, 1, 2, 3, 4। इसके आसपास में मुझे कुछ लोग बतलाए हैं कि जब पेसी लायंस जनरल मैनेजर था तो लगभग 20 से 40 या 50 गिरमिटिया लोग को वो दाग कर थोड़े से बालू छोड़कर तोप देते थे। तो मैं देख रहा हूं शनिवार से या शुक्रवार से जगह जगह पर फिजी में गिरमिट रिमेम्बरेंस डे और गिरमिट कमेमोरेशन हो रहा है लंबासा में। और इंडिया से भी एक मिनिस्टर आया है। तो मैं जैसे पहले बतलाया, ये जो इंडिया से मिनिस्टर आया है और जो इसके जो 7 लोग आए हैं, इनको राम्बी आइलैंड ले जाना चाहिए, इनको नतेवा बे ले जाना चाहिए, वाइमोटू कोपरा स्टेट और नादोलासे कोपरा स्टेट ले जाना चाहिए और दिखाना चाहिए कि किस कठिनाई में गिरमिटिया लोग रहते थे
और क्यों मैं बता रहा हूँ रामबी आलन की कि वो पहला जगह गिरमिटिया लोग को ले गए थे जो लेनिदास में आए थे। तो मैं ये चाहता हूँ और चाहता था कि जब ये लौट कर जाए और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ बैठे या चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के साथ, तो बतला सकते थे और फोटो दिखा सकते थे या छापा दिखा सकते थे कि ऐसे जगह पर हमारे पूर्वज को ले गए थे काम करने के लिए फिजी में। और मैं ये भी चाहता था कि इसको हेलीकॉप्टर में बैठा कर लेके जाए मांगो आइलैंड, जो आइलैंड मेल गिब्सन का है, वो उनका मालिक है। वहाँ पर गिरमिटिया लोग को ले गए थे। वहाँ पर गन्ना का खेती होता था, वहाँ पर गन्ना का मिल बनाया गया था। फिर वहाँ पर वो मिल का प्रॉफिट नहीं होता था, तो मिल का पार्ट उखाड़ कर वो पिनेंग शुगर मिल में वो जाकर वो वहाँ पर बैठा है। वहाँ पर बहुत सारा दालचीनी का पेड़ बोया गया, वहाँ पर आम पेड़ का पेड़ बोया गया, ब्रेड फ्रूट या बेल फ्रूट के पेड़ बोया गया, कटहर का पेड़ बोया गया, बादाम का पेड़ बोया गया और बहुत सारे फ्रूट ट्रीज वहाँ पर बोया गया। मुझे बतलाया गया है कि अगर जो आप मांगो आइलैंड जाएंगे तो वहाँ अभी भी आम पेड़ है जो गिरमिटिया लोग बोए थे, दालचीनी का पेड़ है जो गिरमिटिया लोग बोए थे। और मैं ये चाहता था कि ये डेलीगेशन को यनुदा लाइलाई भी ले जाए, द्वासामू ताइलेवू लेकर जाए, बिला लेबू सिंगा टोका लेके जाए, भीतर नैता सीरी जहाँ वाइनी माला और वाइनी बुका जो नदी जहाँ पर मिलता है, वहाँ पर केरा का खेती और धान का खेती गोरे लोग करते थे। वहाँ पर भी जो पहला गिरमिटिया आए थे लेनिदास में, उनको वहाँ बसाया गया था। ये नहीं कि केवल वो घूम कर 5 स्टार होटल में भोजन करके शराब पीकर और लौट जाए। तो जैसे मैं कहा कि जब हिंदुस्तानी लोग को रामबी आइलैंड से कुत्ते की तरह निकाला गया, और अगर जो आप ले तो 1880 से 1879 तो समाप्त हो गया था जब तक कि वहाँ गए। तो अगर जो 1880 से आप ले और 1940 तो 60 years, हिंदी में 28 मेरे ख्याल से कहते हैं। तो थोड़ा सा भी अगर जो वो पैसा बचाते 60 years, तो उनका पास जब वो निकले वहाँ से, जब उनको निकाला गया रामबी आइलैंड से, तो उनको पास थोड़ा पैसा था। उस समय जमीन बहुत सस्ता था। अगर जो आप नतेवा बे में ले क्राउन लैंड या सावु सावु के आसपास में क्राउन लैंड ले, या वाइनुनु बे में कुछ फ्री होल्ड, या नतेवा बे में अगर जो आप ले कुछ फ्री होल्ड, तो वो खरीद सकते थे। लेकिन जब उनको वहां से निकाला गया तो उनको तो पास 1 पाउंड पैसा ही नहीं था। तो वो क्या लेते? तो मैं ये चाहता हूं, और ये मेरा एक ख्वाहिश है, कि जो भी कोई व्यक्ति है फिजी में, सावु सावु में या नतेवा बे में या विदेश में अब चले गए होंगे, अगर जो आप ये जानते हैं कि आपके पर राजा या पर राजी या पर नाना या पर नानी रामबी आइलैंड में थे, तो कृपा करके मुझे संपर्क करें। मेरे मैसेंजर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना टेलीफोन नंबर भी देता हूं, और मैं 3 बार बताऊंगा। मैं ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में रहता हूं,
तो कंट्री कोड आप करें 61427270 मैं फिर से ये नंबर बता दूं, आपका कोड मारना पड़ेगा 61427270 और अगर जो आप रिंग नहीं कर सकते क्योंकि महंगा पड़ता है कॉल करने को, तो आप मैसेंजर पे मुझे कॉल किए। और अगर जो आपके पास कंप्यूटर है और ईमेल है तो मुझे ईमेल करें। मेरा नाम है प्रवीण कुमार, तो मेरा ईमेल है pravind.kumar1939@gmail.com। तब मैं चाहता हूं कि यहां से मैं आगे बात बढ़ाऊं और यूनिलीवा के पास लिखकर ये पूरा जो हमारा हिस्ट्री है इसके बारे में बतलाऊं। और मैं ये चाहता हूं कि कुछ ना कुछ रकम से कॉम्पेंसेशन इस परिवार लोग को मिले। और मेरे ख्याल से 50 मिलियन पाउंड, क्योंकि इसमें 80 years इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा या 100 साल का इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा उस तनख्वाह पर या वेजेस पर। तो ये मैं कुछ आज कहना चाहता था जो सच्चाई। और ये जो गिरमिट रिमेम्बरेंस डे हो रहा है जगह जगह पर, फिजी में, न्यूजीलैंड में होगा मेरे ख्याल से इस शनिवार और रविवार को। ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत जगह ये ठाने गए हैं, कनाडा में भी रखे गए हैं, यूएसए में भी रखे गए हैं। तो अगर जो ये सब बात आप नहीं करेंगे तो ये गिरमिट रिमेम्बरेंस डे, कमेमोरेशन डे, ये मनाना कोई फायदा नहीं। अगर जो आप 90 और 9% से अगर जो आप फिजी के कोई व्यक्ति से पूछोगे कि कहाँ पर पहला गिरमिटिया को लेके जाकर काम कराए थे, वो कोई नहीं जानता। अगर जो आप पूछेंगे कि कहाँ पर लेनी दास के जो गिरमिटिया लोग आए थे 500, कहाँ पर उनको क्वारंटीन में रखा गया, वो भी लोग नहीं जानते। जब मैं पाठशाला पढ़ता था तो क्लास 6, 7, 8 में ये बतलाया जाता था कि गिरमिटिया लोग को लेवुका लाया गया, और हमको ऐसे पढ़ाया गया था कि उनको लेवुका में रखा गया था। ये तो मैं 4 साल पहले जाने पाया कि एक छोटा सा द्वीप यनुदा लाइलाई में उनको रखा गया, और वहां पर लगभग 300 से 400 कायबीती लोग दिन रात काम किए कि 30 बहुत भारी मात्रा में वो बूरे बनाए, वहाँ छोटा सा क्लिनिक बनाए अस्पताल के लिए, स्टोर रूम बनाए, गार्ड हाउस बनाए। तब वो लेवनी दास से उनको छोटा छोटा बोट में वो खे करके यनुदा लाइलाई में जाकर रखे गए। तो हम लोग को तो शुरू से सच बताया ही नहीं गया। अब मैं देख रहा था कि बनवालेवू में जितना 3 या 4 रोज जो फ्लोट निकाला गया, उसमें केवल गन्ना का खेत, गन्ना का पेड़ बांधे हुए थे। मैं बहुत सोच में पड़ गया कि जो पहला लोग आए थे वो नारियल के खेत में काम कर रहे थे, कोपरा फार्मिंग, कोपरा एस्टेट, कॉटन, रबा, उसका तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ। मैं बहुत खुश होता कि एक गाड़ी में 10-12 नारियल पेड़ और नारियल कोई लेकर फ्लोट निकलता, और कुछ लिखते थे कि हमारे गिरमिटिया लोग जो पहले आए थे वो कोपरा स्टेट में काम करते थे। तो यहीं पर मैं छोड़ता हूं, और जो भी लोग देखते हैं, मैं आशा करता हूं, जैसे अब कुछ चर्चा हो रहा था कि हमारे बच्चे को
सिखाया जाए कि क्या असली इतिहास था। तो मैं यही आशा करता हूँ कि आप अपने बेटे बेटियां आप अपने देखे, अपने माता पिता को दिखाए, अपने नाना नानी आजी आजा को दिखाए कि कहाँ पर पहला गिरमिटिया लोगों को बसाया गया था जो लेनीदास में आए थे, और फिर क्या हुआ उनके साथ 60 इयर्स बाद 1940 से 1945, जब उनको कुत्तों की तरह वहां से निकाला गया। तो मैं यहीं पर छोड़ता हूं। यह है प्रवीण कुमार। मेरा पैदाइश बा में हुआ था। मैं बहुत से गांव बा और तावा में था, और मैं ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में रहता हूं। मुझे लगभग 35 इयर्स हो गया ऑस्ट्रेलिया में रहते। और मैं यही आशा करता हूं कि जो लोग ये सुने, जो कोई इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो कृपा करके ये हिस्ट्री बताए, और कौन कौन और जगह पर जो लेनीदास में आए थे उनको बसाया गया था। गीला तव्यूनी, सोमो कोरो के बगल में तव्यूनी में, बीला लेवू सिंगाटोका, भित्तर नेता सीरी जहाँ पर वानीमाला और वानीम्बुका नदी मिलता है, कोरोनिविया रिसर्च स्टेशन, और दोआ सामू थालेबू। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबको राम राम, सीताराम, जय श्री राम, नमस्ते, नमस्कारम, सलाम वालेकुम और बुला।